And today we're going to talk about finding love again. और बहुत जल्दी आपकी young age पे I got married at the age of 20. 20. My first marriage was not my love marriage. Yeah. It's not I'm finding love again. Yeah. No. I've found love for the first time in my life. Abhi. I'm so happy that Muz is giving me the chance to have these really organic and very well-intended, constructive, positive conversations around the institution of marriage. मुझे नहीं लगता था मेरी कभी भी दूसरी शादी होगी. हाँ. मुझे नहीं लगता था. Never. 16 years के बाद you found love, second chance at love. ये कहते हैं कि लड़कियां इस काबिल हों कि अगर अकेले उनको करना पड़े तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें. वो उनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए. किसी पे डिपेंडेंसी ना. हर औरत पे होनी चाहिए. लेकिन आइडियली इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर दैट इज द आइडियल लाइफ. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मियाँ बीवी और वो सब. एक बड़ी ही मेरे लिए दिलचस्प सीरीज़ है जो हमने शुरू की 2-3 महीने पहले. दिस इज़ एपिसोड 3 एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट फाइंडिंग लव अगेन. एंड बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है लेकिन बड़ा ज़रूरी सब्जेक्ट है. आजकल 2-3 ड्रामे भी हम ऐसे देख रहे हैं कि विडो होने के बाद औरत की ज़िंदगी जो है वो कहाँ जाती है, या सेपरेशन के बाद या डिवोर्स के बाद. एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस इट विद utmost सेंसिटिविटी. बट फाइंडिंग लव अगेन इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. और दूसरा मौका प्यार करने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता. और मेरी आज की मेहमान जो है आमना, इनके साथ बड़ी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी पहले जब when you came with Ayla. Yes. And a lot of people said that we really enjoyed the conversation but we wanted to know more about your life especially. And it is a subject that not many people are comfortable talking about. And लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसी औरतें जितना इस पे बात करेंगी वो उतनी ही एक कंफर्ट लेवल बनेगा. एक सोशल टैबू जो है कि जी दूसरा मौका प्यार का, या इस पे जितनी कॉन्वर्सेशन हो उतनी अच्छी है. Absolutely. Why not? Why not? Why not? And I'm so happy that people like you are open to talk about it. And we've celebrated your shadi recently. Yes. जब हमने पहले भी जब episode की थी. So yeah, this is episode 3 of Miyaँ Biwi और वो सब. It's powered by Muz. And I'm so happy that Muz is giving me the chance to have these really organic and very well-intended, constructive, positive conversations around the institution of marriage. And the fact कि एक पुराने ज़माने के ख्यालात होते थे शादी को लेके, और एक अब के ख्यालात, और ये जनरेशन क्या सोचती है और हम कहाँ जा रहे हैं with this institution. So and this is why I'm so happy we're having this conversation today. So finding love again, and you did. Yes. And you did. Yes. And to recap, although हमने अपनी conversation में ये बात की थी पहले, but to recap, आमना थोड़ा सा मुझे बताओ और देखने वालों को कि when did you get divorced, किन circumstances, कितने साल बाद you found love again? I got divorced after 8 years of my marriage, in which 7 years we were together and 1 year was a separation. और बहुत जल्दी आपकी young age पे I got married at the age of 20. 20, yeah. So, and Ayla was born at that right after 9 months. She हाँ. was there. तो 7 साल की हमारी शादी चली. 1 साल की separation थी. I was in Karachi and my ex-husband was in Dubai at that time. फिर 1 साल तक जब मैं when I was doing everything on my own and I was taking care of Ayla on my own and he was nowhere to be there at all. तो फिर कुछ था भी नहीं. तो then I took खुला. मैंने खुला दी. Right. And it was a very civil, peacefully everything was done. My ex-husband was not the sort कि जिसने कोई problem create की हो. Right. तो खुला हो गई, and then I started working and I was just busy raising Ayla. That was like my entire universe कि बस Ayla. हाँ. Like every other mother. बिल्कुल. Mostly. तो फिर remarrying again after like 16 years. 16 years. 16 years. अच्छा, अब ये आसान तो नहीं हो सकता. आसान, I think आसान ऐसे हो सकता है if you find the right person, Amna. तो मुश्किल नहीं हो सकता. I can't say कि मुश्किल, आसान, but something जो आप कर सकते हो. अच्छा, पहले तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं ऑन डिवोर्स. डिवोर्स हो जाती है, हर घर की, हर औरत की डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके अंदर सेपरेशन या डिवोर्स.
आई फील, और मैंने कई दफ़ा ये कहा भी है कि मुझे ऐसा लगता है स्पेशली हमारे माशरे में या दुनिया में एक्चुअली, अगर औलाद हो तो डिवोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो औरत पे ज़्यादा होता है. इज़ दैट ट्रू? जब मेरी डिवोर्स हुई थी ना, तो मेरी फैमिली में वो पहली डिवोर्स थी. So you have no idea, Amna, it was a very big thing. Like जब मेरी my mother was my support ना, Yeah. तो कुछ अरसे तो उन्होंने किसी को नहीं बताया. Because when the family found out कि मैं इतने अरसे से दुबई से मूव होके कराची में हूँ and my husband is not there, तो my mother was my support. और जब डिवोर्स हो भी गया तो उन्होंने कहा बेटा कोई जरूरत नहीं इस खानदान में फौरन बताने की, आई एम देयर विद यू, तो मैं अपने टाइम से बता दूंगी. तो एक बहुत टैबू था, तलाक हो गई है. लाइक अब तो बहुत आई वुड से इजी है और कॉमन है और लोग इस चीज को इतना वो टैबू फिर नहीं है. बट आज से आप 15 साल पहले जाएं पीछे, तब माइंडसेट्स जो थे वो इतने इजी नहीं थे ऑन डिवोर्स. नहीं कि बेटी की डिवोर्स हो गई, बच्ची की तलाक हो गई, तो क्या हुआ, एंड दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग. तो उस टाइम पे तो मुश्किल था. इट वाज नॉट दैट इजी. और पर्सनल, आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन. पर्सनल ट्रॉमा होता है इवन आफ्टर दो की सेपरेशन हुई हो, गो के शादी इतनी अच्छी ना गुजर रही हो, मगर फिर भी जब आप डिवोर्स में से गुजरते हैं तो इज इट लाइक रिलीफ और इज इट लाइक do you think it's different for every person? It's different for every person. If you ask me, because जब मैं कराची वापस आई, मैं फिर बहुत इंडिपेंडेंट हो गई काम वाइज. एंड देखिए इंडिपेंडेंसी सबसे पहले आपकी होती है फाइनेंशियली, स्पेशली इफ यू हैव चाइल्ड. अगर आपके कोई औलाद नहीं है तो आपका इतना मसला नहीं होता. आप अपने पे तो आप इजी हो सकते हो, बट फॉर योर चाइल्ड यू वांट द बेस्ट. फॉर दैट यू हैव टू वर्क, फॉर दैट यू हैव टू अर्न, फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू दोज मुश्किल हालात जो कि ठीक है उस टाइम पे आपको मुश्किल नहीं लग रहे होते. तो जब मैं इंडिपेंडेंट हुई, इसलिए वो 1 साल का ब्रेक था एंड ही वाज देयर. एंड इंडिपेंडेंट होने के बाद जब ये डिसीजन मैंने लिया और बहुत सोच समझ के लिया कि मैंने कहा देखो he's not there as a father figure. He's not there emotionally, he's not there financially, he's not there anywhere in my life. It's just that के his name is there written. मेरे नाम क्या है, उसका नाम लगा हुआ है बस. और बीच में कोई सपोर्ट नहीं है. So to be frank, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं. Lot of my friends they made me sat and they said कि तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ के साथ, कि where is your husband? जब वो है ही नहीं और 1-1.5 साल से तुम सब कुछ अकेली कर रही हो, यू रेजिंग योर चाइल्ड योरसेल्फ, यू डीलिंग विद एवरीथिंग, योर फेस इज देयर टू डील विद एवरीथिंग. तो ये नाम ही एक लगा हुआ है ना, तो ये हटाओ, नाम खत्म करो. एंड तो वो बात फिर मुझे क्लिक की. एंड आई सेड बात तो सही है कि 1-1.5 साल से अगर सब कुछ मैंने ही करना है, एंड ही डजंट वांट टू कम बैक एंड ही डजंट टू मच इन्वॉल्व एंड ही इज वेरी ओके विद डिवोर्स एज वेल, कि हाँ ठीक है, ओके, लाइक नो, मतलब नो, हाँ ठीक है, खुला करना है तो कर दो, मैं तो यहाँ से नहीं कर सकता, यू सेंड, आई साइन द पेपर्स, नो इशू, नो प्रॉब्लम. तो फिर जब मैंने किया तो आई फेल्ट गुड. मुझे वो नहीं हुआ कि मेरी तलाक हो गई या है या नॉट. हाँ, लोग जब आपको बोलते हैं आपको वो एक फील आता है व्हेन पीपल टॉक. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा वो एक नेचर है कि कोई बात कर ले वो दिल पे लगती है, वो आप दिमाग में सोचते हो. थोड़ा थोड़ा तो लगा भी शुरू के दिनों में, बट बाद में मैंने कहा कि ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी डिवोर्स पिछले 1-1.5 साल से तो है, बिकॉज मेरा मियाँ तो मेरे साथ नहीं है. तो ये तो वही लाइफस्टाइल है कि खाली एक मैंने साइन कर दिया और हमारा नाम अलग हो गया, बट लाइफ तो मेरी वैसे ही चल रही है 1.5 साल से. सब कुछ तो मैं कर ही रही हूँ उसके लिए. तो ऐसा नहीं है कि कुछ मेरी लाइफ चेंज हो गई कि अब मैंने घर छोड़ा और अब मैं अम्मी के पास नाम हटेगा, बस एक नाम हटा. तो was fine. It was fine. It was okay. मुझे लगता है लोग भी वो जो है ना, एक सवाल जो उठता है सोसाइटी की तरफ से कि औरत का कसूर होगा, पता नहीं क्या ऐसा क्या हुआ जो तलाक, यू नो, दैट इज सो रिग्रेसिव और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है कि लोगों के ख्यालात के, और फिर स्पेकुलेशन के अच्छा तलाक क्यों हुई, क्या कसूर किया, क्या हो रहा था, लोगों की इंट्रूजन आपकी जिंदगी में. In that way, I think मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था. Like हमारे common friends and everyone who've seen us together, तो जब हुआ तो they said कि अच्छा हुआ, you were better, or you know, we get it. हाँ, we get it. तो किसी ने मेरे पे पिन पॉइंट नहीं किया
they said कि बहुत अच्छा किया, we are happy, you deserve better, और ठीक है, हम तो मिले हुए हैं और everything is one of us, and no. तो ये एक सपोर्ट थी, आई वुड से, और ये मैंने वो नेगेटिव इतने कमेंट्स नहीं सुने कि तुमने ही कुछ किया होगा या तुम्हारा मसला होगा। you and you had that support, वो एक बड़ा शील्ड होता है, मदर, माँ बाप का बड़ा शील्ड होता है, of course। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा जो मेरी जो शील्ड है, that is my mother। मेरे ख्याल है हर बंदे के लिए होता है, और जिनको नहीं मिलती वो शील्ड, वो बहुत सफर करते हैं, वो सफर करते हैं जब माँ बाप से सपोर्ट नहीं आता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो यंग मदर डिवोर्स्ड विद, एंड देन आई थिंक फोकस कम्स फ्रॉम मैरिज टू मदरहुड। completely। हाँ, मतलब मुझसे इतने सालों लोगों ने बोला कि शादी कर लो, शादी कर लो। शुरू में शुरू हो गए थे क्या ना? मतलब शुरू के कुछ 2-4 साल में, because you were what, 26, 27? I was 26, 27। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। ऐसे यार कर लूंगी जब करनी होगी, अभी तो नहीं कर सकती, अभी तो काम पे फोकस करना है ना, अभी तो बच्ची पालनी है, अभी क्या शादी कर लो। एक चीज से मैं निकली हूँ और मैं फौरन उसी में कर लूं तो, और फिर when you have a kid, आपके बहुत डिसीजंस आपके अपने तो हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, आपने पहले सोचना ही बच्चे का है। Do you think ये सही तरीका है सोचने का? देखिए, in my case तो that is how I think, if you ask me, you know why? देखिए, मैं कर लूंगी शादी। हाँ, मैंने अगर उस टाइम पे शादी की होती, which I also discuss with Ayla, कि अगर मैं तुम्हें उस टाइम पे मैंने शादी कर ली होती और एक बंदा आ जाता मेरी लाइफ में, और प्रॉब्लम तो मेरे साथ ही रह रही होती है, तो मेरे साथ नहीं रह रही होती, तो नानी के साथ रह रही होती, तो पूरी लाइफ, चले मैं तो अपनी लाइफ अच्छी गुजार रही हूँ, मेरी बेटी पे क्या गुजर रही होती, बोलती मेरी माँ चली गई। एंड योर चाइल्ड, स्पेशली अ डॉटर, नीड्स हर मदर। वो तो बहुत जरूरत है बच्चे को माँ की। राइट रॉन्ग लाइफ कैसे गुजारनी है, बिकॉज एक बेटी अपनी माँ को देख के चलती है मोस्टली, बिल्कुल 80%। एब्सोल्युटली। आप जितना भी बोलें कि अपनी, आप जैसे आई रिमेम्बर, अगर मैं छोटी एज में मम्मी को थी आप ये क्या कर रही हैं, ये नहीं, आज मैं वो सारी चीजें कर रही हूँ। मतलब आई एम माई मदर। आयला टेल्स मी, मैं जो करती थी आई एम लाइक यू, कि व्हेन आई यूज्ड टू से कि मामा आप ये नहीं करिए, मैं वो सारी चीजें कर रही हूँ। तो मैं अगर नहीं होती लाइफ में, ऑफ कोर्स मेरी मदर होती है, अगर आयला मेरी अम्मी के साथ भी रह रही होती, पहले तो देखना ये है कि शादी किससे कर रही हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हु आर यू मैरिंग। लेकिन शादी तो सब, हर बंदा यही सोच के करता है कि सही बंदे से ही हो रही है। नहीं, लेकिन नहीं, सही बंदे से तो हो रही है। देखिए, एज आई सेड, अगर आपकी औलाद नहीं है, यू आर इन अ मैरिज, अगेन यू आर मैरिंग समबडी, वो सर्कमस्टांसेस आपके लिए है ना, गुड और बैड आपने झेलना है। बट आपकी जब औलाद है तो आपने अपनी औलाद के बारे में तो सोचना है कि वो जो नया इंसान आ रहा है लाइफ में, हु इज गोइंग टू बी द स्टेप डैड, उसका क्या रोल होगा, और ये सोचना बहुत जरूरी है। और देखिए, आमना, आपकी औलाद को कोई उसका बाप डांट दे, ओके, नानी डांट दे, दादा दादी डांट दे, कोई तीसरा बंदा डांटे या कुछ बोले ना, nobody takes that। बाप बनने की कोशिश करे। Yes, nobody takes that। तो वो भी ना उस जमाने में कि मैं ऐसी कर लूं शादी, मतलब कि मेरी बच्ची का, मेरे लिए तो आयला वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा जो भी डिसीजन है, क्या इवन अभी की भी जो मेरी शादी है, आयला का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। कि आयला ने मिलना है, आयला ने देखना है, आयला ने एग्री करना है, यस करना है, तो मेरी तरफ से यस है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, माहिरा ने बहुत फेमसली किसी इंटरव्यू में बोला था कि व्हेन शी गॉट मैरिड अभी टू सलीम, तो सलीम केम एंड आस्क्ड हर सन कि यू नो कि आपकी, वी नीड योर परमिशन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस चीज को आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, एक माँ का रोल। मेरे ख्याल है एक मॉडर्न वुमन का एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो कहती है कि नहीं, इक्वल रोल है बाप माँ का। नहीं है, ना नेचर ने इक्वल रोल दिया है, ना आपके मजहब ने इक्वल रोल दिया है। और वो जो माँ का रोल है, वो क्यों सारे बच्चे माँ के पास ही रहते हैं ना। जिस घर की माँ चली जाती है ना, उस घर का निजाम बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। बाप नहीं वो चीजें कर सकता, नहीं। जो माँ कर सकती है। माँ तो देखें, औरतों को तो वैसे ही इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाया है ना। मेन आर दैट वे, आर नॉट वेरी इमोशनली स्ट्रांग,
women are very emotionally strong that way. वो पेन भी ले लेंगी और वो कर भी लेंगी, वो 4 चीजें भी कर रही होंगी, साथ उनके प्रॉब्लम्स भी चल रही होंगे, वो सब कुछ एक साथ कर रही होंगी। मर्द इतना नहीं ले सकता। वो बोलेगा यार मेरे ऑफिस की बहुत टेंशन है, हाँ, मुझसे घर की टेंशन ना करो। बिल्कुल। बट औरत अगर ऑफिस में काम भी करी होगी तो वो घर की टेंशन भी उसके लिए इक्वल उतनी ही होगी जो उसने दोनों देखी है। अगर वो घर का ऑफिस का काम मजबूरी से कर रही है, उसको करना पड़ रहा है, नॉट शौक से कर रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, तो कब फिर जिंदगी में ये डिसाइड किया 16 इयर्स के बाद यू फाउंड लव, सेकंड चांस एट लव, कब ये लगा कि अच्छा आई एम ओपन टू इट नाउ? अच्छा, आई वाज ओपन टू इट लाइक इफ यू आस्क मी 5 6 7 साल से के बाद। बट ऐसा ओपन नहीं था कि कोई भी मिल जाएगा तो शादी कर लूंगी। हाँ। जब तक कि इट, और अगर कोई नहीं भी मिलेगा तो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब मुझसे मेरी शादी से अगर कोई साल पहले या 6 महीने पहले भी कोई पूछ रहा है कि तुम शादी कब करोगी, ऐसे यार जब होनी होगी हो जाएगी। इट्स नॉट दैट आई एम लुकिंग फॉर इट। इफ देयर इज अ राइट पर्सन, कोई मिलेगा। जो मुझे लगता है नहीं मिलेगा, मैं ये भी बोलती थी। हाँ, जब बंदा सिंगल होता है लगता है नहीं मिलेगा। तो मुझे करनी, मुझे मेरे इश्यूज जो हैं, जो जिस टाइप का मुझे चाहिए वैसा तो नहीं मिलेगा। सो मैंने जरा आउटलाइन बताओ ना दोबारा। ऑल्दो आउटलाइन हो चुकी है एक दूसरे वाले पॉडकास्ट में, आज जरा दोबारा। मतलब मेरे थोड़े इश्यूज थे कि थोड़े से ड्रग्स, अल्कोहल्स वगैरह की चीजें ना हो और थोड़ा इन चीजों में ना हो, सिंपल हो और नमाजी हो तो क्या बात है। मतलब बेस्ट हो जाएगा। तो वो तो फिर सारी चीजें जब एक बंदे में मुझे नजर आई एंड ऑल, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो मेरे यही था कि मैं नहीं, आई डोंट ड्रिंक एंड आई एम नॉट इनटू दीज थिंग्स, एंड फॉर मी नमाज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहती थी कि जहाँ पे भी मेरी शादी हो, बहुत पैसा ना हो, सुकून तो हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ पे भी ये चीजें इन्वॉल्व हैं, भले जितना भी पैसा हो ना, उस घर में थोड़ा सुकून की कमी होती है। सो दिस वाज माय थिंग कि यू नो, तो वो सब चीजें एक बंदे में मिल गई और ज्यादा ही मिल गई। सो आई वाज लाइक वाओ। कभी दुआ की कि मुझे मिले ऐसे? अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा दुआ भी नहीं की। बिकॉज मैं अपने कई दोस्तों को जानती हूँ जिनकी तलाक हुई और फिर उसके बाद वो एक्टिवली ये दुआ करती थी कि या अल्लाह तूने इस चीज की इजाजत दी है और हमने सही सर्कमस्टांसेस में तलाक ली है, बट वी रियली वांट समबडी टू हमारी जिंदगी में किसी को, मतलब एक्टिवली दे यूज्ड टू प्रे फॉर अ गुड कंपेनियन। जो आई थिंक हम लोग इसको भी अंडरमाइन करते हैं, कंपेनियनशिप की जो एक वैल्यू है। हम कहते हैं कि नहीं, एज इंडिपेंडेंट वुमेन वी आर ओके अलोन, वी कैन बी, बट it's not ideal. No. And you only realize that when you find somebody. देखिए, कंपेनियन क्या होता है? कंपेनियन वो होता है जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हो। आपके दिन में कोई छोटी सी चीज हो गई, आपने क्रिप करना है, आपने कोई गॉसिप भी करनी है, आपने कोई मस्ती भी करनी है, आपने कोई अपना प्रॉब्लम भी करना है, आपने अपनी कोई जोक भी करना है। कंपेनियन इज देयर ओनली फॉर यू। I can't do all this with my daughter. She has her life. I can't do all this with my mother. Obviously, कर सकती हूँ बहुत सारी चीजों में, she won't understand. वो आप नहीं कर सकते हो ना, आपको पता है कि वो कौन सा थॉट प्रोसेस है। और कंपेनियन वो होता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, एंड आपको ऐसा इंसान चाहिए। नो मैटर आपके कितने बेस्ट फ्रेंड्स भी हों, क्लोज फ्रेंड्स भी हों, आप करते भी हो, बट वो सब भी अपनी अपनी लाइफ में हैं। सुन लेंगे, मस्ती मजाक तो हो जाएगी सब, लेकिन कंपेनियन जिस तरह से आपकी बात में इंटरेस्ट लेके सुन के, यू नो, दैट बॉन्ड एंड ऑल, वो तो कंपेनियन ही करेगा ना। We also as a society have a taboo on intimacy. You're talking about intimacy और admitting कि वो भी एक relationship कितनी जरूरी होती है with your husband. और मेरे ख्याल है हम लोगों की माओं की तो वो generation थी कि उनको ये हिंट भी मिल जाए ना कि मियाँ बीवी में इंटीमेसी है तो वो हो हाय उफल्ला बेशरम, यू नो, ये कैसी बात है, अकेले जा रहे हो खाना खाने या अकेले हॉलिडे पे जा रहे हो, क्यों, क्या आखिर आई, क्या मुसीबत है। बिल्कुल। तो इंटीमेसी वो सच ए टैबू। और मुझे पता है कि फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, कि कुछ औरतें जिन्होंने जल्दी जल्दी शादियां की, उनका ये था कि इसको क्या मसला है, यू नो, ये अकेली, मतलब व्हाई डू यू नीड अ मैन सो बैड इन योर लाइफ दैट यू कांट बी अलोन, एंड फोकस उसी पे जाता है कि जी हाय इंटीमेसी के लिए इतनी कोई डेस्परेशन है। तो एक तो नेचुरल सी चीज है, इसमें क्या डेस्परेशन की बात है, मतलब कि ये कोई अलग से तो चीज नहीं हो रही। एंड आई थिंक वी नीड टू एम्ब्रेस दैट नाउ, यू नो, women also need intimacy in life. Yes, of course,
Absolutely. Healthy relationship तो तभी होता है ना if Absolutely. there is intimacy with your companion. I mean, अगर intimacy हटा दो तो फिर तो क्या है? siblings ही हो गए Sibling ना बहन भाई बन जाओ, मतलब बहन भाई बन जाओ. yeah Of yeah. course. बहन भाई भी कई दफा बड़े अच्छे companionship होती है अगर आप हाँ. holidays पे जा रहे हैं सही बात है. but I think मियाँ बीवी are at their most vulnerable self in front of each other Yes. in every possible way Absolutely. और वो जो comfort level आप hit करते हो और उसमें अगर आपको खुशी मिले और प्यार मिले तो you struck Nothing gold. like it. Absolutely. बिल्कुल ऐसा ही है. Absolutely. बिल्कुल. मगर is it difficult to get into an intimate relationship as a wife after 16 years? देखें डिफिकल्ट वही है. डिफिकल्ट आप इफ यू गेट द राइट पार्टनर ना तो दिस कम्स वेरी नेचुरल. Yeah. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप इंटिमेसी और आप इन चीजों के लिए कुछ सोचते नहीं हो. ये बड़ा नेचुरल निकलता है. As again I said, if your partner is there to appreciate you, Yeah. अगर आपका पार्टनर आपको सुनता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपको आपके गुड और बैड डिसीजन में आपके साथ खड़ा होता है ना, तो ये चीजें बहुत नेचुरल होती हैं. आपने कोई मेहनत नहीं करनी होती, आपने कुछ सोचना नहीं होता. सो इट्स ऑल अबाउट who is the person that you are remarrying again. Yeah. So मेरे in my case, alhamdulillah, I've been very lucky. Alhamdulillah. I think मेरे with Mubarak, all the points जो मैंने सोचे थे are tick. और probably अल्लाह मियाँ ने कुछ 4-5 और भी एक्स्ट्रा दे दिए कि ये तुमने नहीं सोचा था ना, ये मैंने सोचा था. ये बड़ी यही बात ये है. भी लो. यही बात है. और मैंने इफ यू आस्क मी ना दुआ की कभी, मैंने कभी दुआ नहीं की. नहीं की. मैंने सच कभी दुआ नहीं की. हाँ. मैंने कहा मैं जो मेरे हक में बेहतर हो. Absolutely. मुझे नहीं लगता था मेरी कभी भी दूसरी शादी होगी. हाँ. मुझे नहीं लगता था. Never. हाँ. I was so certain about it. कि मेरी दूसरी शादी का जैसा बंदा मुझे चाहिए कहाँ है, नहीं है. हाँ. जो हैं वो मैरिड हैं. Married है. मैरिड बंदे तो Obviously. तो अब मैरिड और जो दूसरे टाइप के हैं वो दूसरे टाइप के ही रहे फिर. वो मेरा मतलब नहीं है, तो फायदा नहीं है. Yeah. तो मुझे तो नहीं था कि मेरी कभी शादी होगी. तो मैं खुश भी थी अपनी लाइफ में. इवन when मुबारक had asked me कि शादी का and all, I said नहीं पागल हो गए, मैंने कहा शादी करनी है. अभी तो मेरी बच्ची की 2-3 साल में शादी होनी है. उसकी शादी है. मैं तो कोई शादी नहीं करनी. मैं लाइक अच्छा, मैं शादी नहीं करनी है. और माशाल्लाह से हम दोनों के बच्चे जो हैं वो साथ चल रहे हैं. मूसा is also getting engaged. Ayla is also yes. तो दोनों वही प्लान्स थे मेरे के you know कि अभी तो आयला का होना है. अब मेरा तो टाइम हो गया खत्म. I'm not going to marry again. I'm so okay with my life and I'm okay and I'm fine. And आयला की जो भी लाइफ है उसको देख के I will enjoy. Yeah. मगर अल्लाह ने सही वक्त पे किसी को भेजा because आयला के होके शादी हो गई तो फिर you would have felt that void, emptiness syndrome होता है. Absolutely. पूरी जिंदगी जब आपने बच्चे पे डिवोट की हो और बच्चा जब अपनी जिंदगी शुरू करे, बिल्कुल जो उसका बिल्कुल राइट भी है. Absolutely. तो फिर आपको एक सेंस ऑफ होता है. एक बात आयला ने बहुत अच्छी बोली. आयला ने कहा मामा देखें, शायद आप जब मैं छोटी थी आप शादी करती ना तो शायद मैं अंडरस्टैंड भी नहीं करती कि माय मदर गॉट रीमैरिड, और मैं अगर आपके साथ भी होती या मैं नाना के साथ भी होती. अब नाउ दैट आई अंडरस्टैंड, लाइक आई कांट इवन इमेजिन यू हैड मी व्हेन यू वर 21. आई कांट इमेजिन कि मैं तो सोच ही नहीं सकती. और आपकी इस एज में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग. एंड अब शी लाइक आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक लाइफ है, आप क्यों नहीं करेंगी शादी? इफ देयर इज अ मैन who loves you, who respects you, who cares for you, who respects all of us, why not? You should have a proper, आपका बिल्कुल राइट है कि अपनी लाइफ आप आगे करें. She's like, मैं अब ये बात समझती हूँ and I'm happy for you. शायद आज से 8 साल 10 साल पहले आपने किया होता, मैं ये बात शायद तब नहीं समझ सकती होती थी. मेरी वो एज ही नहीं थी. तो मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने बहुत परफेक्ट टाइमिंग्स फॉर एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. कि अभी आले की शादी होनी है तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी शादी से पहले मैं तुम्हारा ठिकाना लगा देता हूँ. यू नो कि आई एम तो ग्रेटफुल एवरी डे. आई ऑफर नमाज एंड आई डू शुक्राने के नफल एवरी डे. बिल्कुल. व्हिच आई सेड कि
अल्लाह ताला इतना मेहरबान नहीं होता हर एक पे यार। एक्चुअली ग्रेटिट्यूड इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हाँ। और अल्लाह से किसी चीज का शुक्र अदा करना हाँ। और दुआ करना इज हाँ। सो इम्पोर्टेंट। शुक्र आप अल्लाह का जितना ये अदा करेंगे करें, ना, बिल्कुल। अल्लाह आपको इतना कहाँ, वही ऐसे कि ऐसी ऐसी जगहों से देगा हाँ, कि आप आपको बोलोगे नहीं होगा कि ये अंदाजा, मेरे साथ क्या हो रहा आप है। नहीं होगा। तो इट्स द शुक्र दैट आई ऑलवेज हैड, हाँ, कि बिल्कुल हर चीज बिल्कुल, का आप अपने से नीचे वाले को देखो और फिर एब्सोल्युटली, आप बोलो अल्लाह तेरा लाख 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 शुक्र लाख है। शुक्र है। अच्छा, लेकिन जगह यहाँ हमारे मुल्क में खास तौर पे बहुत कम है जहाँ कि आपको लगे कि आपको फर्स्ट चांस एट लव छोड़ के सेकंड चांस ऑफ लव मिले। टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर एक डेटिंग कल्चर है, ये लोग मिलते हैं, वर्क प्लेस में मिलते हैं, पहले स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, बार्स, पार्टीज, क्लब्स, डिस्कोस, ये वो देयर इज अ होल कल्चर जहाँ फैसिलिटेट करता है दैट आप मिलें, आप डेट करें, आप स्पेंड टाइम विद समबडी एंड देन यू मैरी देम। यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, मोर और लेस। सो वेयर डज वन फाइंड, और यू नो क्या वो हैं अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मिले? where did Mubarak find you? He found me, he saw me first time in 2018 and he was like in awe. He's like what a girl and all, and he's like I saw you, अब बस मैंने दिल में सोचा कितनी अच्छी, I love it, कहीं बाहर से आई है, हाँ, यहाँ की नहीं है। He's like मैं देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। और देखा कहाँ? किसी के घर पे, किसी के घर पे, किसी के घर पे देखा रात को, नहीं सेट के बस रात की बात की, अच्छी लगी, एक मैंने दिल में सोचा और बात खत्म। देन ही सॉ मी अगेन एट अ फ्रेंड्स वेडिंग, बल्कि एक और दफा कहीं और भी देखा। देखो ना, ये चीजें हम ड्रामा में देखते हैं, हम कहते हैं ये नहीं होता, लेकिन ये होता है, होता है, वेडिंग पे ये होता है, शादियां आ रहा ऐसा ही है। उसने फिर एक और जगह देखा और इसने कहा कि यार ये तो वही लड़की है। He's like wow, I saw you again, and he remembered कि तुमने एक्वा पहना हुआ था, शलवार कमीज, और तुमने ये वो, तो he remembers everything। मैं तुम्हें फिर देखा तो वो एक कॉमन फ्रेंड के घर पे देखा। सो फिर चली गई, काफी दो तीन साल गुजर गए, फिर उसी फ्रेंड के घर पे शादी थी। तो ही सेड कि मेरा शादी पे आने का मूड नहीं था, बट आई जस्ट थॉट कि शायद तुम होगी वहां पे, बिकॉज तुम वो कॉमन फ्रेंड की दोस्त तो हो, लव स्टोरी, सो आई विल गो। So he said, I was there and there I saw you first time, wearing white, coming up. It was on a rooftop. So he's like climbing stairs and I saw you and I was like, wow. But हमारी कोई बातचीत, कुछ भी नहीं हुआ. Nothing happened. And just before, after, बस कोई बातचीत नहीं, क्योंकि मैंने तो, जबकि we were there on dance practices, he was there dancing, I was there dancing, ना मैंने नोटिस किया, ना उसने मेरा किसी से नाम पूछा। he said मैंने ये सोचा कि तुम किसी की बीवी निकल आओ, किसी की बहन निकल आओ, मैं नाम पूछ रहा हूँ इस पार्टी में, doesn't, he's a बलोची guy, तो वो बहुत इस मामले में respect and all, is like, तो शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, कोई बातचीत नहीं। 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट आई। ओके, एंड यू न्यू हिम, हेलो हाय तक मतलब मेरी उससे हेलो हाय ऐसी हुई थी कि द डे ऑफ द मेहंदी जब हो गई, तो फिर उसके बाद वो आफ्टर पार्टी जो होती है, उधर बैठे हुए थे बोट क्लब के ऊपर, तो व्हेन यू नो यू से बाय टू एवरीवन, उससे पहले मेरी कोई हेलो हाय नहीं थी। जब बाय आप करते हो, आप एक सबको बाय करते हो, तो लाउंज था, एक कमरा था, स्वीट था, तो मैं एक जगह थी, दूसरे कमरे में था। सो मैंने बोला ओके गाइज, आई एम गोइंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, वलीमा परसों। तो जब एक सबका बाय करते हो, तो आई सेड बाय टू हिम। सो ही केम एंड इज लाइक, यू नो, आई हैवंट सीन अ प्रिटीएस्ट गर्ल लाइक यू। तो उसने मुझे ये बात बोली, एंड आई वाज लाइक ओह थैंक यू सो मच, बस। तो ये मेहंदी पे हुआ, तो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा अच्छा वलीमा होगा, ये आएगा, ये इसने मुझे इतनी बड़ी, इतने लोगों में ये बात बोल दी, तो बात बोल दी, तो मैं देखूं तो ये है कौन, क्योंकि तब तो मुझे भी नाम नहीं पता था, मुझे नाम तक नहीं पता था कौन है। ये वलीमे पे आया ही नहीं, ही वाज नॉट वेल। ही सेड मैं मेहंदी वाले दिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि आई कुडंट कम ऑन द वलीमा। तो फिर जब वलीमे पे नहीं आया, तो मेरे भी दिमाग से निकल गई, मैंने कोई आया था, किसी ने बोला, अच्छी लगी, बात खत्म हो गई। सो देन ही सेंड मी request on Insta. So then I saw him, I said, अच्छा, his name is Mubarak. Potential है. His name is Mubarak. तभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। तो मैंने सोचा था, मुझे क्या पता इसके दिल में क्या है, ये उसने मुझे 2018 में देखा हुआ है, he likes me, ये तो मुझे कुछ नहीं पता था ना, बस मुझे दिमाग में था कि इसने मुझे ये बात बोली थी। और इसने भी मुझे जब रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट की, इसे तो फॉलो किया, मुझे मेरा ओपन पेज है, he followed me, I followed him back, कोई बातचीत नहीं। महीना
हाँ, कोई महीना, हाँ अरे, 15-20 दिन मेरी हाँ, कोई मैं वर्कआउट की डाल रही हूँ वो लाइक कर रहा है, ही इज ऑल्सो इनटू वर्कआउट, कोई डाल दी तो लाइक कर दिया, कुछ नहीं. When Ayla posted one video that my mother made me biryani after हाँ, 12 years, there he messaged me. हाँ, He said, "Oh my God, I don't believe this. Is that your daughter? And when did you get married? ये तुम्हारी औलाद है, तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी है और this and." वहाँ से हमारी conversation शुरू start हुई. हुई. And वहाँ से फिर बातचीत होने लगी and all. And फिर हमारा उसी common friend के घर पे कुछ event था. So I said, "Are you coming there?" And he's like, "नहीं यार, मुझे तो कोयटा जाना है, नहीं आ सकता है." And I said, "Okay." तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मिले तो हमारी कोई मुलाकात नहीं है, और बस ये हमारी इंस्टा पे मैसेज पे ही बात थी. वी नेवर एक्सचेंज व्हाट्सएप नंबर्स, नो नथिंग. दैट इंस्टाग्राम, माय ओपन इंस्टा, एंड वी आर जस्ट चिट चैटिंग. इंस्टाग्राम किसी काम आया. इंस्टाग्राम से काम आया. या सो देन ही केम बैक फ्रॉम कोयटा एंड ही सेड कि यार मैं कोयटा से जल्दी आया हूँ, आई वांट टू हैव कप ऑफ कॉफी विद यू. मैं इसलिए जल्दी आया हूँ. सो देन आई सेड, आई फेल्ट एज यार एक बंदा मेरे लिए जल्दी आ गया है, कॉफी. अरे अच्छा चलो कॉफी पे बैठते हैं, कॉफी पे मिलते हैं. कॉफी में कोई हर्ज नहीं है. कॉफी में कोई हर्ज नहीं है. मैंने कहा, I'm not gonna step out from the car because you Yeah. know how people are. Yeah. आप किसी के भी साथ बैठ जाओ तो people will tag your name के, और मैं तो उस बंदे को इतना नहीं जानती, तो I said नहीं, we'll sit in the car and we'll have coffee. So he came. So the first time when he picked me, he was not looking at me. हाँ, He's driving. I'm sitting. He's not looking. हाँ, He's driving सीधा सीधा. I thought he's driving. हाँ, He's not looking. हम गाड़ी रुकी, कॉफी ऑर्डर किया, देख रहा है, नहीं देख रहा. Said, इसको क्या है? He's not looking. Then the next time he said, he was a bit shy. He was shy. हाँ, He's like, you can't imagine, you were my crush, and you are sitting right next to me. मैं कैसे देखूं? That's so sweet. So that was such a That's so honest romantic. thing. हाँ, yeah. मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, वरना आमना आप खुद बताओ, आजकल के जो लोग नहीं हैं, होता ऐसे, नहीं. वो तो आपके ऊपर से आएंगे ना, बिल्कुल. वो और चौड़े में आएंगे. ओवर कॉन्फिडेंस. वो अच्छा ये तो वो तो ही वाज सो सिंपल कि नेक्स्ट टाइम ही सेड कि यार मुझे नहीं देख, जो बंदा मुझे बहुत पसंद है, उसको देख ही नहीं सकता. तो मैं देख रही हूँ तो वो शर्मा रहा है. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, हैं आजकल भी ऐसे मर्द. तो मैं वो चीज ने मुझे ना बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिया कि ये ही इज नॉट द रॉन्ग पर्सन. ये तो टीनेज लव स्टोरी होगी. बड़ी एक्चुअली टीनेज लव स्टोरी. तो मुझे उससे ये था कि एटलीस्ट मैंने शादी का तो तब भी नहीं सोचा था, बट मुझे ये जरूर था कि कुछ नहीं होगा, एक अच्छा दोस्त हो जाएगा, यू नो, वील बी फ्रेंड्स. हाँ, तो मिल लेंगे. तो ही इज नाइस. ही बिकॉज इनकी पूरी फैमिली में ना इज्जत बहुत देते हैं. दे गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. अब इसका भी एक रीजन है. ही टोल्ड मी, व्हिच मेड सेंस टू मी लेटर ऑन, कि ही इज लाइक, यू नो, हमारी फैमिली में women have empower. औरतों का, औरतें ऊपर है. तो और वो लाइक मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही एक चीज सिखाई है कि औरत कोई भी हो, तुमने बहुत इज्जत देनी है. तो जो इंसान औरत को इज्जत दे, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा इंसान है. बिल्कुल सही है. उसमें एक तमीज है, उसमें एक लिहाज है. सो और फिर नमाज जो पढ़ रहा हो, वो गॉड फियरिंग ऑलरेडी हो जाता है. और फिर नमाज फॉर हिम इज लाइक, नमाज इज फॉर हिम इज वेरी बिग. मैं नमाज नहीं पढ़ी, तुम दुनिया को देख रही हो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है. यू नो, तुम्हें फजर नहीं पढ़नी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. तुम दुनिया की वजह से कर रही हो, असल में अल्लाह पे जाना है. ये बहुत 2 दिन की, दिस इज वेरी टेम्पररी वर्ल्ड, द लाइफ विल स्टार्ट देयर. तो यू नो, वो भी मुझे इतनी बातें बोल बोल के यू नो, तो ये बातें मुझे बहुत पसंद आई कि नमाज और रोजा और तहज्जुद और रिस्पेक्ट करना. मतलब बहुत तहम्मुल और बहुत कंटेंट और काम it feels to be. It's like मैं दुनिया के लिए नहीं बना हुआ. Like not for the world. अल्लाह ठीक है, I'm हम like, दुनिया बना लेंगे. So वो भी that way. So ऐसा बंदा फिर आपको समझ आता है. तो फिर जब आयला को मैंने बताया, who's this guy you meeting, you dating, आप पहले देखें, कोई डिसीजन नहीं लेंगी. I hope you're not in love. You can't do this. प्रोटेक्ट में है, उसकी अंदर की प्रोटेक्शन, उसकी तो एक उसकी एक मदरली नेचर निकल आई मेरे लिए. एग्जैक्टली. तो मैंने कहा, तुम जब मिलोगी, तब तुम डिसाइड करना. कुछ भी ऐसा नहीं है. बिल्कुल. You're very important. Yeah, absolutely. And once you will say yes, then we'll talk about it. Yeah. So that's how I met. See, my first marriage was not my love marriage. Yeah. It's not I'm finding love again. Yeah. No. I found love for the first time in my life. Abhi. Yeah. My first marriage was, मेरी फैमिली ने कहा इसकी शादी कर दो, बीसी खीसी.
शादी करो, शादी बेसी तो गीसी है, शादी करो और बस जो रिश्ता आया और शादी हो गई। तो ना मेरी कोई लव थी, ना मेरी वो कोई चॉइस थी, जो माँ बाप ने कर दिया कि कर दो, तो बस बाबा की तो डेथ हो गई थी, तो अम्मी थी एंड माय चाचाज एंड फुप्पोज सर कर दो तो बस कर ली। तो वो लव मैंने अपनी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया था। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट नाउ। This is the time when I'm actually, you know, I'm so happy for you. And I'm saying, you know, हर चीज, thank you so much, कि हर चीज बहुत टाइमली, कि औलाद भी हो गई, पढ़ा दिया, और पैरों अच्छा पे खड़ा कर दिया, अच्छा पाल भी लिया, सब कुछ, you know, बहुत सी चीजें जरूरी हैं बात करना। मगर before we proceed, एक बात है कि now because हम मुझ की बात कर रहे हैं as a platform, मैंने देखा आपने भी 2-3 के साथ collaborations की हैं। Single women, like divorced women, या जो के who have lost their husband as widows, क्योंकि अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही सोसाइटी में या कोई कुछ भी, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिंगल मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स कैन पोटेंशियली फाइंड अ गुड मैच। What would your advice be to young girls or maybe even boys कि जब वो अपना पार्टनर अगर मुझ जैसे मैरिज ऐप पे, जो कि एक टारगेटेड इस्लामिक मतलब मुस्लिम गर्ल्स एंड बॉयज ऑल ओवर द वर्ल्ड और बड़ी अच्छी सक्सेस रेट है, व्हाट वुड योर एडवाइस बी फॉर देम कि क्या ढूंढें? बिकॉज ऑन पेपर क्या ढूंढना चाहिए जिससे आपको कम से कम आपका जो लाइफस्टाइल है, जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अलाइनमेंट आपकी सही रहे। देखिए, मुझ जैसे ऐप में आप अपना एक बायोडेटा देते हो, इट्स लाइक द सेम थिंग जैसे रिश्ते वाली आंटी होती है। बिल्कुल। तो रिश्ते वाली आंटी का तो ये है कि आप आंटी के पास जाते हो, वो फिजिकली प्रेजेंट होती हैं, आप अपना बायोडेटा देते हो। तो उन आंटी वाली में और इनमें कोई इतना फर्क नहीं है, इट्स द सेम थिंग व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग। एक फर्क है, हाँ, फर्क ये है कि आंटी जो रिश्ते वाली आंटी होती हैं वो जनरली पेरेंट्स के पास आती हैं, और मुझ पे जनरली आई फील, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ऑटोनॉमी जो है वो लड़के लड़कियों के अपने हाथ में होती है, और वो एक कोई भी वली या गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हाँ, ठीक है, ऑटोनॉमी शिफ्ट हो गई, वेरी नाइस, इवन बेटर फॉर दैट वे। तो उसमें देखें, आप अपना, अगर मैं अपना बायोडेटा देती हूँ या कोई देता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स उधर हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप वो डालो चीजें और उसमें आपको मैचेस मिलते हैं कि ये, क्योंकि हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है ना। कोई बोलेगा मुझे पाकिस्तान से बाहर रहना है, कोई बोलेगा मुझे पाकिस्तान का लड़का नहीं चाहिए, मुझे अब्रॉड सेटल होना है। जैसे कोई डॉक्टर हो, वो डॉक्टर बोले आई वांट टू डू माय डॉक्टरशिप बाहर, कोई ऑलरेडी बाहर सेटल्ड है, तो इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ देम। किसी के हर एक के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी को ट्रैवल करना है, किसी को कैसा मगर चाहिए। सच बोले अपनी रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहली बात तो हाउ यू वोंट गेट द राइट मैच देन। हाँ, मैं अगर ये अपने राइट अप में लिख दूं कि आई एम अ स्विमर एंड ऑल, मुझे स्विमिंग ही नहीं आती, मतलब कि मैं जिससे बात कर रही हूँ बोले चलो यार स्विमिंग करने चलते हैं, वहां तो मेरा झूठ पकड़ा। देखें, बिल्कुल, आप अगर शादी किसी से कर रहे हो, आप झूठ बोल के कैसे करोगे वो शादी? वो तो शादी हुई नहीं ना, और शादी कर रहे हो। इट्स नॉट अ डेटिंग ऐप कि आप बिल्कुल डेट, आप उस डेटिंग ऐप पे जा रहे हो सोच के कि मुझे यहाँ से अगर कोई अपना प्रॉस्पेक्ट मिलता है, आई वांट टू डू शादी, मैरिज ऐप पे, मैरिज एंड पे। हाँ, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या बुराई है? हम वैसे भी जब लोगों से मिलते हैं आमना, तो हम कैसे मिलते हैं? माय फ्रेंड्स, ओ यू, आई हैव अ फ्रेंड फॉर यू, व्हाई डोंट यू मीट दिस पर्सन एंड ऑल। आप उससे मिलते हो, एक दो दफा मिलते हो, आप देखते हो आपकी वाइब मैच कर रही है कि नहीं। बिल्कुल, आपकी वाइब मैच करती हो, यू प्रोसेस फर्दर। आपकी वाइब मैच नहीं करती, आपकी दोस्ती हो जाती है, आपका चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। सो ये एप्स तो बहुत ही आसान है और बहुत अच्छी है और बहुत कन्वीनियंट है। इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है, मगर मुझे वही बात है कि आप एक समझदार इंसान की तरह उस ऐप के ऊपर साइन अप करो। एक तो बी ऑनेस्ट एंड बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आई थिंक मुझे नहीं पता, देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक मुझ ऐप यूज नहीं की। मुझ ऐप के अंदर अगर ये चीज बहुत एक श्योरिटी वो बोले कि जो भी आ रहा है बायोडेटा है नॉल, अगर आपकी डिग्री दो, अगर आपने पढ़ाई की हुई है उसकी डिग्री दो, ये सारी चीजें अगर कंफर्म प्रॉपर दें, इट्स द बेस्ट ऐप टू स्टार्ट योर लाइफ विद। देयर इज एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि अब आपको मैं बताऊं, रिश्ते खत्म हो गए नहीं है रिश्ते। मेरी इतनी दोस्तें हैं यंगर देन मी, नेवर बीन मैरिड, इन देयर 30s, नहीं, हम लोग लड़का ही नहीं है।
किससे करें शादी, हम्म, किससे करें शादी? हम्म, सो ये एप्स बहुत इजी है फॉर दैट। Absolutely. और ये बड़ा क्लियर है कि इट्स नॉट अ डेटिंग ऐप, हाँ, इट्स अ मैरिज ऐप। मैरिज इस ऐप। पे जो लोग आएंगे, और आई एम श्योर ड्रिफ्टर्स भी होते होंगे, ऐसा नहीं हो हाँ, सकता, आएंगे, वो भी वो आएंगे। होंगे, अपने अपना रेडार ऑन करके रखें, हाँ, स्मार्टली स्मार्टली करें, स्मार्टली ऑपरेट देखें ना, स्मार्टली बिल्कुल ऑपरेट करें। बिल्कुल लेकिन आप एक शादी की नियत से इस पे जा रहे हैं, बिल्कुल आप ढूंढ रहे हैं एक बंदा जिसकी आपके साथ कंपैटिबिलिटी मिले, आपकी बिल्कुल। वाइब मैच हो, और आप सच सच बोले। इससे अच्छी और क्या बात है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि कितनी सारी लड़कियां घर में बैठी हुई हैं और हर कोई चाहता है जिनकी शादी हो। I'm surprised कि खैर not surprised, over 7 lakh people have actually matched on Moz देखिए, already. वाओ, Muslims all over the world. amazing, Leading Muslim marriage लीडिंग app. मुस्लिम, हाँ, हाँ, Muslim marriage app. देखिए हाँ, मजे की चीज है कितनी यार, मजेदार मजे चीज की है, चीज है कितनी यार। कन्वीनियंट हो गई ना आपके लिए हाँ, absolutely, absolutely. कि नहीं आपको अभी दोस्त, अब आपकी दोस्त के पास बॉयज खत्म हो गए दिखाने के लिए, वो कह रही यार मेरे पास अभी हाँ। कोई नहीं है तुम्हारे टाइप के लड़का, Yeah. नहीं कर। और इतनी लड़कियां हैं, सबको शादी करनी होती है। Of course. ये और ये बड़ी बहुत नेचुरल चीज है, और ये इसको एडमिट करने में कोई गलती खराबी बिल्कुल, नहीं जो लोग है। बोलते हैं अब- नहीं हमें करना है, हम तो अपना करियर बनाएंगे, भाई बिल्कुल करियर बनाओ, Yeah. बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। इंडिपेंडेंसी अमेजिंग, बट इंडिपेंडेंसी विल नॉट टेक यू एवरीवेयर। Yeah. इन द एंड यू विल बी अलोन। You shouldn't be alone. you Nobody shouldn't be. Nobody should opt to be alone if they find the right person. Nobody should be close to finding the right person. देखिए, हाँ, एक सिंगल मदर की जिम्मेदारी है, वो आप निभाएं। हाँ, लेकिन अब मैं ड्रामे पे जरा, यू गोइंग टू से समथिंग, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हाँ दो बीबी हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जोड़ी भेजी ना, बिल्कुल, तो जोड़ी का मकसद है किसी Yeah. वजह से जोड़ी भेजी है, तो Yeah. दुनिया में भी जोड़ी ही चलती है, Yeah. अकेला अकेला कुछ भी नहीं है। इन दी एंड आइडियली आइडियली अगर हो जाए तो नथिंग हम लाइक तो ये इट कहते हैं कि लड़कियां इस काबिल हों कि अगर अकेले उनको करना पड़े तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, हो सके, वो उनमें कैपेसिटी और बिल्कुल। कैपेबिलिटी होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। हर औरत पे होनी चाहिए। हाँ। लेकिन आइडियली इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर, दैट इज द आइडियल लाइफ। एब्सोल्युटली। सिमिलरली मैं आजकल, यू आर आल्सो वाचिंग I'm पामाल, watching. हाँ, Who's तो not? who's not, Yeah. और खत्म भी होने वाला है। हम्म। लेकिन ये है कि अब आखिरी जो एपिसोड थी इस हम्म। हफ्ते की, एंड अब जब तक हमारी वीडियो आएगी पिछले हफ्ते की एपिसोड्स में, अब रजा पासेस अवे जो कि हमें नजर आ रहा था बीमार है, ये वो हर चीज, आखिर में वो एक बड़े वल्नरेबल मोमेंट पे कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम दोबारा शादी करोगी कि नहीं, और वो बड़े इमोशनल होकर कहती कि नहीं, तो मैं सोच भी नहीं सकती है। वो दिल में मैंने सोचा कि यू नो, ये बीमार ना होता तो यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ लीविंग हिम बिकॉज यू आर सो सिक ऑफ हिम एंड हिज कंट्रोलिंग वेज। लेकिन चलो अब ये मर रहा है तो तुम कह रही हो मैं सोच नहीं सकती, तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने कहा ये अब कहेगा कि नहीं, आई वांट यू टू हैव अ लाइफ एंड यू शुड फाइंड समबडी। कहता है हाँ, मुझे बड़ी फिक्र होती है कि बाप, मेरी बेटी को बाप नहीं मिलेगा, तुम्हें तो शायद मिल जाए, मेरी बेटी को बाप नहीं मिलेगा। और जब अन्नी वापस उसकी जिंदगी में आता है, तब मैंने कहा अब ये कहेगा कि यू नो इससे कर लेना, always been there for you, and he's a good man, अच्छा बाप होगा। नहीं कहता, वो कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट कैसे होना है, और तुम इस पे डिपेंडेंट हो रही हो, तो वो उसको डिस्करेज करता है। यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मतलब आप लोग खुद तो जा रहे हो, हाँ, और आपकी बीवी जवान है, आपकी बच्ची छोटी है। इट्स नॉट दैट शी इज, मैं तो कहती हूँ किसी भी एज में शादी कर लेनी चाहिए, ये भी बड़ा एक टैबू, उस पे भी एक हम करेंगे। हाँ, ये जो एज फैक्टर हो गया ना कि बुड्ढी ने शादी कर ली, इसकी बुरी बात कर ली, क्यों भाई? निकाह कर रही है, एक अल्लाह की नजरों में एक अच्छा काम कर रही है। एब्सोल्युटली, इस पे करेंगे एक एपिसोड, जरूर करेंगे, मजा आएगा। हाँ। सो अगर अपनी आपकी बीवी आप खुद मर रहे हो, हाँ, तो उसको तो आप एटलीस्ट, ठीक है आपने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, और वो पूरी जिंदगी अकेली रहे। क्यों? स्पेशली जब एक ऐसा मर्द है जो बचपन से उसको प्यार करता है और बहुत अच्छा बंदा है, सवाए उस एक हरकत के जिसने की थी बीच में, वो उसको नहीं करनी चाहिए थी। वो हम मानते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं कि उसने ओछापन किया था, जो कहा था कि मैं हूँ, यू नो, तुम छोड़ दो उसको, वो नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन चलो उसने किया जवानी के एक जोश में, वो उसने उसमें किया ना। लेकिन अभी जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो इतना हर्ट होता है, कहता है मुझे मेरी मंगनी कर दो कहीं और, ताकि ये खुश हो जाए कि यू नो मैं इसके पीछे नहीं आ रहा। मैं कहा यार, शी डिजर्व्स लव। बट यू थिंक आजकल के जो मर्द हैं वो ऐसे ही सोचते हैं जैसे रजा सोच रहे हैं? या मुझे लगता है ऐसे बहुत मर्द सोचते हैं। वैसे बहुत सोचते हैं या प्रोबेबली वो अपनी बेटी के लिए ज्यादा, वो जैसे अगर नॉर्मल लाइफ में हम देखें, क्योंकि ड्रामे तो नॉर्मल लाइफ पे ही बन रहे हैं, देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक मर्द बीवी को बोलता है कि अगर खुदा न खास्ता मैं मर रहा हूँ, या उसको पता है तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत ही कम मर्द होंगे जो बोलेंगे दूसरी शादी कर लो, नहीं बोलेंगे मरते मर जाएं
तुमने कुछ नहीं करना। जो बाप बहुत अच्छा है, हाँ, वो ये कहेगा कि मेरी औलाद को ना औलाद। निग्लेक्ट करना, या मैं तो जा रहा हूँ, तुम ना उस पे डाल जो बोझ उसके सर हाँ पे ये कि मेरे औलाद को ना नहीं। करना। हमने कितने ड्रामा में देखे और कई दफा तो टर्किश ड्रामे भी मैं देखती हूँ। ऑब्वियसली इट्स प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम सोसाइटी, तो अगर मियाँ बीवी की तलाक हुई हो और जैसे एन इश्क में देख रही थी, तो लड़की की तलाक हुई भी औरत की, शी इज रेज्ड हर चिल्ड्रन, डॉटर्स एक्सेट्रा, इवन उस उम्र में मिड लाइफ में भी एक्स हस्बैंड जब नई गर्लफ्रेंड या बीवी लेके आता है तो बुरा लगता है उसको कि नो ओह ही इज फ्लॉन्टिंग हिज न्यू वाइफ, ये वो यू नो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई ये चीजें, नहीं कर इट्स नॉट सकता। दैट इजी, नहीं, इसके लिए बड़ा दिल जिगर चाहिए। हाँ, बट यू वांटेड टू से समथिंग इन फेवर ऑफ द निकाह एंड द होल इस्लामिक वैल्यू ऑफ यू नो, आपको तलाक की इजाजत दी है, हाँ नापसंदीदा एक अमल है लेकिन इजाजत दी है और आपको दी है कि डोंट बी मिजरेबल टुगेदर, इट्स बेटर टू बी सेपरेट, यू नो। देखिए एज अ मुस्लिम हम अपने ही सारी चीजें देख के फॉलो कर रहे हैं ना, एब्सोल्युटली। तो इसमें तो जब तलाक की इजाजत है और रीमैरिंग की इजाजत और निकाह की इजाजत है, आप बाकी चीजों में इतने मुसलमान बन जाते हो। हाँ नहीं, औरत के हकूक पे नहीं बनते, और इन चीजों में नहीं, आपका नहीं, इस्लाम में आप सोच ही नहीं रहे कि ये क्यों और क्यों। एब्सोल्युटली, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि बिकॉज हमारा कल्चर बहुत ओवरलैप करता है हिंदू कल्चर के साथ भी, तो दैट आल्सो कम्स इन अ बिट कि यू नो सती कर देते थे, या विधवा हो गई है तो बस लाइफ इज ओवर, तो वो हमने थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेटली अडेप्ट किया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टैबू नहीं होना चाहिए, और उम्र पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू वांटेड टू से समथिंग अबाउट कि बूढ़ी उम्र में निकाह कर लिया, ये वो, ये क्या जैसे लोग बातें करते हैं ना कि इफ समबडी इज गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 60-65, ऐसी भी क्या यार, तो बेचारी क्यों नहीं, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। आई नो, तो किसी की 60 साल में शादी है, अगर उसको कोई मिल गया है, उसकी जिंदगी के 5 साल हैं, 10 साल हैं, अगर वो उसकी जिंदगी के साल अच्छे गुजर गए, बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन यार। आप कौन हो जो क्रिटिसाइज कर रहे हो? I interviewed Samina Ahmed and Manzur से भाई, oh my god, they were my ultimate favorite couple. I was like, and he's so open. Yeah, I found my dream girl. देखो, it's like यार ऐसी होनी चाहिए, it's so beautiful. मतलब कि wow, माशाल्लाह, why I not? think nothing is more beautiful than two people in love. Yeah, and of course हर relationship में ups and downs होती हैं. I'm sure you also have fights with Mubarak. अभी कहोगी नहीं होती हैं। He says कि fights तो होंगी और होनी चाहिए, सर होनी चाहिए। सर fights नहीं होंगी तो फिर तो बहुत ही मजा ही नहीं आएगा। fights होंगी तो आप और क्लोज होते हो। तो fights तो होती हैं, ये तो ups and downs तो सब, देखिए हमारी लाइफ में ups and downs नहीं होंगे तो हमारी लाइफ ही नहीं होगी ना। Absolutely. हर एक के साथ है ये। There is nothing wrong in it. Fights are healthy, and I'm sure Ayla has a great relationship with him as well. Very good relationship. They're like very good. Like अब इसकी शादी का जो सीन है कुछ अरसे में होने वाली है, तो इज लाइक मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी, जबकि ही इज नॉट दैट एज, इसकी एज कम है, लाइक मेरी बेटी की शादी। लाइक अच्छा, द स्टेप डैड इज लाइक, Ayla is like wow, creepy. He's saying Mubarak to me. Was Mubarak married before as well? No, his first marriage. Yeah. But he's very excited, he's very happy, and Ayla के साथ बहुत, मेरी बेटी है, like अच्छा, okay. I think I want to interview Mubarak now. Oh, you will love it. I think I want to interview Mubarak because again, you know, single man finding love later in life, and he's younger than me. He's younger than you. Nice. And also being so cool about, you know, मैं कहती हूँ he's so cool about it. He doesn't care. Like वो मुझे 100 लोगों में भी हाथ से खाना खिला देगा. I want to flaunt. I want to ask people who are watching, would you like me to interview Mubarak in the next episode, and will you agree to it? I want to hear Mubarak's side of the story. And he seems to be too cool to be true. He's too cool, actually too cool to be true. Like abhi recently he met my family and everyone, and everybody loved him. Loved him, yeah. कि, you know, कि इज्जत, especially आपको वो इंसान अच्छा लगता है जो इज्जत देना जानता हो, जो आपको कॉन्फिडेंस डाले आपके अंदर, आपकी सेल्फ वर्थ को अप्रिशिएट करे। भाई जैसे मैंने कहा, तुम मुबारक भी हमने यूट्यूब पर कंटेंट करना है, तुमने ये करना है, बेबी व्हाटएवर, या श्योर, टू टेल मी। जैसे अभी मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी तो मैंने कहा यार मुझे ना मेरे शॉपिंग में एक वीडियो बनानी है, वो देनी किसी को। अच्छा, मैं शॉपिंग करने की साइड, फोन तो दो, तुम्हारी वीडियो बनानी है, शॉपिंग। अच्छा मैं तो मेरे को बिल्कुल दिमाग से निकल गया था, देनी, लाइक हाँ दो, मुझे कुछ नहीं याद रहता। वेरी सपोर्टिव, देयर टू। मैं इसलिए तो कहती हूँ कि अगर इफ यू मीट द राइट पर्सन ना, तो नथिंग लाइक मैरिंग अगेन। लेकिन आप थोड़ा टाइम दो, शादी, दूसरी शादी
जल्दबाजी में ना करो, Yeah, these are once valuable, bitten twice valuable. shy, थोड़ा ख्याल करके देखभाल, अच्छा बंदा मिलता है जैसे आपको चाहिए, बिल्कुल करो शादी। Look for the right things and you will find the right और things. शादी बरकत लाता है, Yeah. rather than you date somebody Yeah. and stay there and no, date करो, Or even if नियत you're के like साथ के शादी करनी है यार। Kudofying as a single person कि oh मैं अकेली है वो, you know, don't be that bitter person who's going to be Yeah. bitter and lonely. और ये नेचुरल चीज है, आप कुड़ते हो, हाँ, आप कुड़ते हो। मेरी माई बेस्ट फ्रेंड्स देख, हाँ अब तुम्हारा मूड नहीं था सड़ता है? अब तुम्हारा मूड इतना नहीं सड़ता, तुम अब यू नो इन योर डेज यू आर लाइक काटती नहीं हो तुम। हाँ, आई देख, हाँ आई एम हैप्पी बिकॉज नाउ आई एम हैप्पी। yeah. ये तो बिकॉज आपका जब डेज होते हैं या आपका मूड जब ऑफ होता है एंड ऑल, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बहुत ओपन हो ना, तो आप उनको काट सकते हो, और उनको पता है कि आप काट रहे हो, आपका ले लेते हैं। हाँ. हर कोई तो नहीं लेता। हाँ. सो माय बेस्ट फ्रेंड लाइक के काटना कम कर दिया है, हाँ कितनी कूल, कितनी काम हो गई आज, लाइक दीज आर द थिंग्स। Do you feel any less independent or strong as a woman in admitting that you're happier in love or happier in marriage? I'm absolutely happier in love. है ना? Yeah. Absolutely. हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा एक स्टिग्मा हो गया ना, हम रिवर्स में भी चले गए ना, कि एक तो ये है कि जी आप पे सोसाइटी प्रेशर डालती कि एक सर्टेन एज पे शादी हो, फिर अगर डिवोर्स हो जाए तो ओ शादी नहीं हो सकती, टैबू ये वो। दूसरी तरफ ऑपोजिट ये भी है कि जो आजकल की मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्म्ड या बहकी हुई जो फेमिनिस्ट है वो ये भी कहती है कि आई एम हैप्पियर अलोन। कोई भी हैप्पी नहीं होता अलोन, नहीं सुन होता। ले, हाँ, कोई 5%। अगर कोई समझता ना हैप्पियर अलोन, तो आई वुड एडवाइज देम कि अपना दिमाग और दिल खोलें फॉर रिलेशनशिप्स, बिकॉज लाइफ कैचेस अप ऑन यू एंड वी आर नॉट मेंट टू बी अलोन। As human beings, we are not meant to be alone. देखिए ये बात मैं भी करती थी कि आई एम वेरी हैप्पी अलोन, Yeah. मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी बेटी के बच्चे होंगे, मैं उसके बच्चे पालूंगी, हाँ. मैं इतना एंजॉय करूंगी, हाँ. आला तुम घूमना, मैं और अम्मी बच्चे पालेंगे तुम्हारे, हाँ. ये बड़ा सेट प्लान। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती, मैंने यही करना था। ठीक अगर है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, एब्सोल्युटली, तो मैं डेस्परेशन में तो शादी नहीं कर लूंगी, कोई भी मिल जाए मैं शादी कर लूं। नहीं हुई होती तो मैंने यही करना था, लेकिन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज हुई। और आई थिंक शादी ब्रिंग्स सो मच बरकत, इट इज सच अ गुड डिसीजन। एंड अगर सही बंदा है तो आप कर लो शादी, कुछ टाइम लो, देखो, और अगर सही है तो कर लो यार, इसमें क्या बुराई है। So let's normalize second marriages, absolutely, and not build taboos around them. Let's normalize even women marrying after, you know, a bad marriage or being widowed or having lost a first husband. Also later in life. Also importance of raising children the right way and then marrying when they are comfortable, you know, and finding a person who will can never be an original like a biological father, but sometimes even better. Yeah, absolutely. मतलब मैं आले को रील भी देख रही थी ना, लाइक करो, लाइक नहीं किया तुमने आले की रील, वो लाइक नहीं करती यार, कर रही हूँ, वेरी सपोर्टिव। मेरे काम के, मेरे कोई कपड़ों की लॉन्च हो रही है तो मेरे काम वाले मेरे पेज पे डाल रहे हैं, मैं देख रही हूँ इसकी स्टोरी पे वो सारी स्टोरियां खुद से लेके ही पुटिंग इट ऑन हिज स्टोरीज, फॉलो दे लो करो। तो ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाता है, और यू एंजॉय मोर। और it's good to be in love. हाँ, it's good to be in love at any age if you find the right person. Love तो तभी होता है जब right person. और अल्लाह ताला आपके लिए जो भी डिसीजंस लेता है ना, सूनर और लेटर, किसी के लिए बहुत जल्दी ये चीज आ जाती है, किसी के लिए कुछ टाइम के बाद आती है, लेकिन एक चीज इंसान हमेशा दिमाग में रखे कि अल्लाह ताला knows the right time for you. आपको अल्लाह, जैसे बहुत सी लड़कियां हैं आमना जिनकी पहली भी शादी नहीं हुई, एंड दिस कि यार हमारी शादी नहीं, मैं उनको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ जब तुम्हारी होनी होगी ना, हो जाती है, ट्रस्ट मी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगी। लेकिन अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखो, और अभी अगर नहीं भी हो रही, अल्लाह का हर हाल में शुक्र करो। शुक्र इतनी बरकत लाता है, शुक्र इंसान हर वक्त, हम ये बात भी कर रहे हैं ना, और हमें अल्लाह मियां ने इतनी दिया हुआ है कि हम बैठ के सांस ले रहे हैं, तो इसका भी शुक्र है। हम कितना भी शुक्र करें ना, अल्लाह को हमारे शुक्र की कोई जरूरत नहीं है। He does not need our नमाज, our शुक्र, but हम अपने लिए कर रहे हैं। But he likes the sound of it. दुआ जो है वो बड़ी, उसमें बहुत उसमें ताकत है। Of course, तो मैं वही तो कहती हूँ कि दुआओं में बहुत बरकत है। इंसान चलते फिरते दुआ करे अपने लिए, और चलते फिरते शुक्र करे, अल्लाह ताला आपको इतना देगा, इतना करेगा। और कभी कभार लोग ये बोलते हैं कि हम तो इतनी नमाज पढ़ रहे हैं, हम इतना शुक्र कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। होगा। और
और When शायद there's- इससे भी बुरा और हो जब रहा होता आपका टाइम सही आएगा जिसपे Absolutely. आपको तब समझ आएगी Yeah. कि ये मेरा टाइम सही था। Yeah. तो यकीन रखें, यकीन दुआ पे यकीन रखें, नियत साफ रखें और दुआएं तो कहते हैं आपकी किस्मत बदल of देती course, है अगर आप of दुआएं course. करते रहें अपने लिए। हाँ, So why मगर not? सही चीज की बेहतरी की दुआ करें, बेहतरी की दुआ करें, बेहतरी की। उम्मीद ना हारें नहीं जिंदगी में कभी भी, बिल्कुल उम्मीद रखें, एज अ नाउम्मीद ना मुस्लिम तो हो। हमारे तो ये कुरान में कहीं नहीं है कि हाँ। उम्मीद हारना Yeah, नहीं। yeah, yeah. अल्लाह कह रहा So है all those girls who are single or who are divorced or separated or widowed, उम्मीद ना हारें, नहीं नहीं नॉट दुआ जारी रखें आप सबके लिए अल्लाह ने कहीं ना कोई जरूर बनाया है। और अल्लाह आपको आपसे बेहतर जानता है। यही तो he will find ही somebody. नोस कि आपका टाइम कब राइट है। As long as you have faith and you believe, ये एक बिल्कुल। दर्स बन चुका है बगैर आई मैं ये बिलीव कहना चाहती हूँ ये हमारा बट पॉडकास्ट मैं एक बात बताऊं बन गया है। कि हाँ। मैं जिस कॉन्वर्सेशन में भी जिसके भी साथ होती हूँ अगर वहां पे मैं अल्लाह का जिक्र ना करूँ ना वो कॉन्वर्सेशन में मजा नहीं नहीं होता। आता वो मजा नहीं होता। अभी आपके घर को सराउंड कर लिया फरिश्तों ने क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे Of हैं course. और यहाँ पे आ गई एक बहुत बड़ी बरकत कि यहाँ इस घर में हम इस पॉडकास्ट में जहाँ हम शादी की बात कर रहे हैं Yeah. अल्लाह का जिक्र अगर ना करें तो कहाँ मजा ही नहीं क्या आएगा। मजा नहीं आएगा। इट्स द बेस्ट टॉपिक। नहीं मुझे भी कभी कभी लोग कहते हैं ना कि oh you know do you regret marriage or we've been separated for 10 years now and I said no I don't. I actually don't because मैंने इतनी दुआओं से वो शादी अल्लाह से मांगी थी तो मुझे पता था और साथ साथ बेहतरी की भी दुआ मांगी थी तो मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ने मुझे अगर वो दी शादी और वो चलो नहीं कामयाब हुई इन द कन्वेंशनल टर्म्स लेकिन दुआ पे वो मबनी थी तो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी सोचा। बिल्कुल। और मतलब आई नेवर फेल्ट कि नहीं हो मेरी जिंदगी ये वो नेवर। मेहनत की, बच्चे पाले, बहुत अच्छे पाले, बड़ी खुशी होती है उनको देख के। अब उनकी शादी की उम्र आ गई है, you know, yeah, but again sure, मगर guys never close your mind to never close your mind to जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपके लिए सबके लिए अच्छा सोचा हुआ है वो आपको आपकी माँ से 70 गुना अनलिमिटेड ज्यादा प्यार कर रहा है। बिल्कुल। वो क्यों नहीं सोचेगा आपके लिए? हर बंदे के लिए सोचता है। हर बंदे के लिए तो फैक्ट है। On that very positive and blessed note, thank you for sharing your beautiful love story with Thank us. You so beautiful much. love story, and I want to meet Mubarak even if we don't, even if he doesn't give an interview, but I would like to. You will be meeting him soon, inshallah. Inshallah, I will be meeting him soon. Yeah. Or I think stories like you are important to tell because they give women so much hope. Okay, you know, you can find love later in life in your case or in some people's case second time at love, you know, आपको प्यार मिल सकता है, सही बंदा मिल सकता है, आपके ख्वाबों में भी नहीं होगा कि ऐसा बंदा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत में होगा, लिखा होगा आपके लिए तो वो मिल जाएगा। और in some cases मुझ पे भी मिल सकता है। वही तो अभी इतने केसेस तो मुझके हो गए ना। 1.5 लाख तो पिछली शादियां हुई हैं मुझ पे। और कितनी करानी है? हो तो मैं मुझ वालों को कहूंगी मुझे give me a Muslim couple to talk to. I want to know how they got together. Absolutely. That's such a good idea. Yeah, I want to know how they found each other on Muslim and how the relationship is now, how family took it, you know, for them finding each other, the conversations and everything. It would be so interesting. I think marriage is important and conversations on marriage is so important because हर एक की शादी की कहानी फर्क होती है, जिंदगी जैसे फर्क होती है और जितनी आप कहानियां लोगों के साथ शेयर करें वो नॉर्मलाइज होती हैं, लोगों को पता चलता है, उनको तसल्ली मिलती है कि नहीं भाई सेकंड चांस एट लव। A cousin of mine got divorced many years ago, raised 2 daughters and then found a second chance at love. Pehle bhi love they say now, but 3-4 years ago. Okay. And we're around the same age. मैं कहती हूँ यार you're an example, you're like a example and you तसल्ली होती है कि भाई मिल सकता है आपको बंदा, मिल सकता है आपको बंदा, बिल्कुल मिल सकता है कोई ना कोई। It's just the matter of time. Absolutely. जब मिलना होगा तब मिलेगा। जब अल्लाह ताला ने आपके लिए जो टाइम सोचा। दुआ करें और इवॉल्व करें, अपने ख्यालात को खोलें, सोसाइटी की मत सुने and just keep them, you know. लोगों की तो प्लीज ना सुने, बिल्कुल मत सुने, मत सुने, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दे। Absolutely, absolutely. But thank you so much. Thank you. And it was a pleasure as always. Always. And I hope कि लोगों को अब तसल्ली होगी कि लास्ट में कहा इतनी अच्छी conversation थी, but we wanted more. We wanted to hear Amna more. तो I hope कि अभी एक घंटे की conversation में आपने आमना को अच्छी तरह सुन लिया होगा और अगर आप मुबारक को सुनना चाहते हैं तो comments में लिखेंगे we're rooting for मुबारक, but बहुत मुबारक। Thank you. And thank you. Thank you so much. Thank you.